versus Ram? Well, people of Karnataka, which is the land of Bajrangbali, will answer all of these things on the 13th of May. Please wait and watch. Yesterday, KPCC President D.K. Shiv has puja to LPG cylinder because Modi had said so. We will follow the words of Modi. What do you say about it? Well, suddenly the Congress party has started praying to everything, whether it is visiting Bajrangbali temples over the last week or whether it is seeing God in LPG cylinders. The Hindu philosophy sees God in everything, and we really welcome D.K. Shiv and the Congress party offering prayers to LPG cylinders. We are happy that the Congress is doing some kind of puja at least. Last question. Has D. Devagowda ji told that BJP people let enjoy till 13th. After that, we will do it. The 13th people are going to speak and they are going to answer a lot of answers. Thank you. I have come here to cast the vote now, and I am collecting the information from the beginning. Everywhere it is peaceful. I am so happy people are celebrating this festival of democracy in a big way. Morning itself, wherever I have called, there is a good number of voters. They are coming out and coming to the polling stations, and this shows that people are interested to bring again double-engine Sarkar under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Sir, what is the status of overall state? I am quite confident, and as per the information available to me also, BJP will form the government on its own. प्रजातंत्र का त्योहार है मतदान। सब मतदान कीजिए, अच्छा सरकार को लाइए। जो राज्य के वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? किस चीज राज्य का वोटर्स आज सब मतदान केंद्र पे आना एंड ज्यादा परसेंटेज से वोट डालना। ज्यादा परसेंटेज से वोट डालने से एक अच्छा सरकार आएगा। इसीलिए मैं विनंती करती हूँ, सभी को विनंती करती हूँ, एक अच्छा सरकार लाइए, मतदान कीजिए। We have to vote against criminal politics. This is a place where you have the right to decide, because in elections, in politics, it is a ruling party who is accountable, and you know well what to do and what you have suffered and what you have done. We need Karnataka to be beautiful. Sarva Jananga Shanti. Let's keep the harmony. Let's vote communal land by voters. Request all the voters across the state that they should come and vote, and especially a city like Bangalore, where more than 60-70% people are educated, and every day they are seeing what are the things that are going on, and certainly they will evaluate the report card of our party. See, we practically said that the assurances and performance of all the three parties should be looked into by the people, and thereafter they should vote for party. Ability of elders to sit down with youngsters and advise them why voting is important. That's what my parents did. You know, on the voting day, they would ensure that we simply did not go away without voting. They took us with them to the voting booth. They had made sure we were registered, and they made sure that we voted. So I would lay the blame entirely on the elders of this city. Why everybody should convince? All our adults, they will understand what it is. They should feel why I'm not connected. I always tell them, please come and vote, and then you have power to talk. Without voting, you don't have any power to talk. Okay? Do your duty first. What are the issues you would like any government that comes next to? No, I told everybody. For me, it's only I look at education. That's my heart. जहां पर अमित हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, वहां पर क्या वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। शिकारीपुरा के बूथ नंबर 134 में हम हैं, जहां से येदियुरप्पा 8 बार जीत कर आए हैं। इस बार का कर्नाटक इलेक्शन बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए क्योंकि उनके बेटे BY विजेंद्र को शिकारीपुरा से इस बार टिकट दिया गया है। उनके बड़े बेटे शिवमोगा से पहले से ही सांसद हैं और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि शिकारीपुरा की जो जनता है लगातार 8 बार से येदियुरप्पा को चुनती आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ बताएं येदियुरप्पा अकेले ऐसे शख्स हैं जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री कहे जाते हैं कर्नाटका के। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 7 बजे से पहले ही लोग यहां पर पहुंच गए थे और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और यहां पर जो तस्वीर है वो बताती है कि यहां का जो मतदाता है, यहां का जो वोटर है, सजग है, सक्रिय है। यानी पहले मतदान और उसके बाद जलपान की जो प्रक्रिया की बात हम करते हैं चुनावों के दौरान। और यहां पर कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, जैसे यहां पे एक बच्ची खड़ी है। क्या नाम है आपका मैम? तनु। आप पहली बार वोट डालने आए? नो। क्या नाम है मैम आपका? वोट होगಬೇಕು ಇವಾಗ। देखिए भाषा की थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर जरूर है। आप हिंदी बात कर सकते हैं? कोई हिंदी बात कर सकते हैं? थोड़ा भाषा की दिक्कत यहाँ पर जरूर है। आप हिंदी बात कर सकते हैं? थोड़ा आता है। अच्छा सर, आप वोट करने के लिए पहुंचे, कहाँ से आ रहे हैं? हम यहाँ शिकारपुर। अच्छा, जब वोट करने जा रहे हैं दिमाग में क्या चल रहा है? कैसी सरकार चाहिए आपको? बीजेपी अलावा कुछ और सरकार चाहिए हमको। ठीक है, तो देखिए अलग अलग मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। यहां पर कुछ युवा वोटर्स भी पहुंचे हुए हैं, यहां पर कुछ बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हुए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी यहां पे बीफ्ड अप कर दी गई है। कुछ ही वक्त में येदियुरप्पा, उनके बेटे BY विजेंद्र, बड़े बेटे राघवेंद्र, उनके परिवार के बाकी सदस्य यहां पर वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। कुल 6 अहम वोट येदियुरप्पा परिवार से हैं। लेकिन शिवमोगा की जो सियासत है, जो लेगेसी है, बहुत अहम है, क्योंकि सबसे जो बड़े कद के नेता हैं येदियुरप्पा, यहां से हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। शिकारीपुरा से 8 बार वो जीत कर आए, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनकी जगह उनके बेटे BY विजेंद्र को टिकट मिला है विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए। सुबह से ही 6:45 बजे से लोग यहां पर आने शुरू हो गए थे और अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी भी लगातार सक्रिय हैं। ठीक है अमित, ठीक है, आपके पास फिर से आएंगे और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। बेंगलुरु से सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, जिस जगह पर आप मौजूद हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज का अच्छा खासा कब्जा है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचाएंगी? मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है क्या, और किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? प्रियंका और मोनिका, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं साउथ बेंगलुरु में मौजूद हूं और बेंगलोर की अगर हम तमाम सीटों की बात करें तो कुल 28 सीटें यहां पर हैं और साउथ बेंगलुरु में ब्राह्मण समुदाय का प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है। तेजस्वी सूर्या यहां से सांसद हैं बीजेपी के और जैसा कि अमित ने कहा, येदियुरप्पा का उन्होंने बार बार नाम लिया, तो येदियुरप्पा को रिटायर होने के बाद भी क्या जो जनता है प्रदेश की, क्या येदियुरप्पा के नाम पर वोट डालती है? इसी से तय होगा कि क्या बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी या नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कर्नाटक की जनता को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो भी हो, कोई भी पार्टी जीते, कम से कम हंग असेंबली नहीं होनी चाहिए, जो कि पिछले 5 चुनावों में 3 बार हुआ है। और सबसे ज्यादा कर्नाटक की जनता को इसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हो, सरकार एक किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए, ताकि जिस तरह की गफलत हमने देखी है 2018 की हम बात करें, किस तरह से किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। पहले बीजेपी ने सरकार बनाई, येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर पाए, फिर जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, फिर जेडीएस और कांग्रेस में टूट हुई, फिर से एक बार बीजेपी ने सरकार बनाई। तो इस तरह की स्थिति फिर से पैदा ना हो, ये कर्नाटक की जनता को ख्याल रखना होगा और पूरी तमाम पार्टियों ने जोर लगाया है। आप जोर की आजमाइश कितनी रही ये समझ लीजिए कि भाजपा की तरफ से पिछले कुछ महीनों में 400 रैलियां, जोर आजमाइश बहुत रही, लेकिन देखना होगा कि इस बार सरकार किस तरह की बनती है। कांग्रेस के हाथ में कमान जाती है, बीजेपी के हाथ में जाती है, जेडीएस के हाथ में जाती है, या फिर त्रिशंकु सरकार की स्थिति देखने को मिलती है। सुमित, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? तो जब आपने वोट कास्ट किया है तो कैसी सरकार आप चाहते हैं इस बार, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इशू रहा है, या जिन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया है? ज्यादा इशू है अभी वो पुअर पीपल के लिए वो हाइक हो गया, ये रेशन मटेरियल हाइक हो गया, इधर 2 साल से ज़्यादा हाइक हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, वो 300% हाइक हो गया। वो उधर जिंदगी में वो जीने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। वो सैलरी आता है 10,000, 11,000 आता है,
वो इधर आता खर्च हो सकता है, वो 20,000 ऐसा हो रहा। वो उधर हमारा राज्य में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गया। वो उधर पुअर पीपल नहीं रहने के लिए नहीं हो सकता, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत एक रेशन आइटम वो 300% हाइक हो गया 2 साल से, ऐसा हो रहा, ऐसा कर दिया आदमी। वो पुअर पीपल कौन कैसा जीता है, जीना पड़ेगा, है ना। ठीक है सुमिता, हम सीधा अमित की तरफ रुक कर लेते हैं। अमित, लगातार आप बता रहे थे पूरा इसका ज्योग्राफिकल, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या कुछ इतिहास रहा है, लेकिन इस वक्त जो वोटर्स वहां पर आए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? क्या उनसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा मुद्दा रहेगा जिस आधार पर आज वो मतदान करने जा रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा भाषा की दिक्कत यहाँ पर जरूर है क्योंकि लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। आप हिंदी बोल सकते हैं सर? आप हिंदी बोल सकते हैं सर? अच्छा, ये तो कैंडिडेट है, आप हिंदी बोल सकते हैं सर? नहीं, देखिए सर, आप पार्टी का नाम नहीं लेना है, यहाँ पे वोट करने के लिए लोग हैं। अपने रिएक्शंस बताइए कि आप अगर आप वोट करने आए सर, तो दिमाग में क्या क्या चीजें, कैसी सरकार चाहिए, वो क्या काम करे? इधर बहुत कुछ चल रहा है बीजेपी का अलावा। तो देखिए, ये पार्टी का नाम ले रहे हैं क्योंकि ये रूल नहीं है, आप पोलिंग बूथ के अंदर पार्टी का नाम नहीं ले सकते, आपको अपने मुद्दे बताने होते हैं। हिंदी बोल सकते हैं आप? हिंदी बोल सकते हैं सर? तो यहाँ भाषा की थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिकारीपुरा ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर येदियुरप्पा अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। बहुत सारे बेशक वो ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाषा की दिक्कत है, लेकिन मुद्दे यहाँ पर अहम हो जाते हैं। तो शिखा का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। शिखा, मुद्दे अहम हो जाते हैं, जिस तरीके से अमित भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो मुद्दे जनता से जानने की कोशिश कीजिए, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करने पहुंच रही है। देखिए मोनिका, मैं यहाँ पर बसवराज बोमई का जो रेजिडेंस है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये शिगांव में उनका रेजिडेंस है जहां पर वो आएंगे। वोट कास्ट करने का टाइम जो है वो अभी इस समय अगर बात करें तो 9 बजे का बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनको हमने देखा कि इस बार किस तरीके से चेन्नम्मा, उनकी पत्नी और साथ ही साथ उनके बेटे भरत जो लगातार चुनावी प्रचार में जुटे रहे, वो भी वोट कास्ट करेंगे, यानी कि सब परिवार वो वोट कास्ट करने आएंगे। तब हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता कि किस तरीके से यहां पर इस बार उनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। किस तरीके से उन्होंने कई ऐसे जो वायदे हैं पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र में किए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो जनता है वो किसे चुनती है, क्योंकि 3 बार बसवराज बोमई जो है वो जीत चुके हैं शिगांव से ही, और इस बार भी पूरी कोशिश उनकी रहेगी कि वो यहां से जीत दर्ज कराएं। लेकिन देखिए, जो समीकरण है वो यहां पर थोड़ा सा परेशानी में उनको डाल सकते हैं, क्योंकि लिंगायत समुदाय जो है वो यहाँ पर बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। और ऐसे में कांग्रेस समझ रही है कि जो लिंगायत समुदाय है वो जेडीएस बिल्कुल न सिर्फ लिंगायत समुदाय बल्कि वो कलिंगा समुदाय भी जो है वो बहुत अहम हो जाता है। शिखा, लौटेंगे आपके पास। कंटेस्ट किया है, मुझे बहुत खुशी लग रहा है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ रहा हूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रहा है, लगातार येदियुरप्पा जी को इस क्षेत्र के मतदार ने आशीर्वाद करके आ रहे हैं। तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मेरा पहला चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी लग रहा है। सर, आपको क्या लगता है मोदी मैजिक कितना यहाँ पर वर्क कर रहा है कर्नाटक में? मोदी मैजिक हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आएगा। कम से कम 130 सीट्स जीतेंगे इस बार इस चुनाव में। सर, आप कॉन्फिडेंट है कि लिंगायत कम्युनिटी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, क्योंकि एक ओपन लेटर नहीं, नॉट ओनली लिंगायत कम्युनिटी, इवन अदर कास्ट ऑल्सो, SC, ST, OBC, वकलीगा, सब कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरीके से हमारा भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम किया है, खाली एक कास्ट के लिए, एक जात के लिए नहीं काम किया है, पूरा सभी कास्ट सभी इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बजरंग दल का यूज किया गया, बजरंग बली का यूज किया गया, जो पुअर वोटर है उनको डराया धमकाया जा रहा है बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए। तमाम चीजें वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हारने वाला पार्टी है इस चुनाव में। दे आर गोइंग टू लूज इलेक्शंस बैडली, सो इसलिए ये सब बहाना लेके आ रहे हैं। इट नॉट गोइंग टू हेल्प कांग्रेस पार्टी है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। चल एक और है।
और तस्वीरें आपने देखी किस तरह से यहाँ पर हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है यहाँ पे। और जो बीवाई विजेंद्र हैं वो उनके बेटे हैं वीएस येदियुरप्पा के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। तो देखिए 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वक्त हम शिकारीपुरा पोलिंग स्टेशन पे, जरा तस्वीरें देखिए शिकारीपुरा पोलिंग स्टेशन के। सुबह के वक्त भीड़ कम है, लेकिन वीएस येदियुरप्पा, उनके बेटे बीवाई राघवेंद्र, बीवाई विजेंद्र, वो अपने परिवार के साथ आए थे, वोट कर गए हैं। कुल 6 अहम वोट हैं जो येदियुरप्पा फैमिली से थे। और अभी जब हमने उनसे बात की, हमने वीएस येदियुरप्पा से बात की, उनके बेटे बीवाई विजेंद्र से बात की, उनके बेटे बीवाई राघवेंद्र से बात की, तो सबने ये कहा कि बीजेपी इस बार बहुमत में आ रही है, विकास का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जो बातें कांग्रेस कह रही है वो पूरी तरह से भ्रम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करने का नुकसान कांग्रेस को इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। येदियुरप्पा ने साफ साफ कहा कि बीजेपी इस बार मेजॉरिटी में आ रही है और उन्हें किसी दूसरी पार्टी की जरूरत सरकार बनाने के लिए नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, बीवाई विजेंद्र जो कि पहली बार मैदान में उतरे हैं, 8 बार से उनके पिता वीएस येदियुरप्पा यहां से जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार किस्मत उनके बेटे बीवाई विजेंद्र कर रहे हैं। और उन्होंने दावा किया कि करीब वो 50,000 वोटों के मार्जिन से यहां जीतने वाले हैं। ये देखने वाली बात होगी। रामनगर चलते हैं, वहां पर मेरे सहयोगी सुमित हैं। बिल्कुल अमित, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, उनके परिवार के साथ भी आपने यहां पर बात की। और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग बूथ नंबर 182 पर, यहां पर कुछ ही देर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पहुंचेंगे अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी, अपनी पुत्रवधू और अपने बेटे निखिल के साथ वोट करने के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा, क्योंकि इस गाँव की जो जनसंख्या, जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, 700 से 800 जो है यहाँ पर वोट है। और सुबह से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी जो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर भीड़ नजर नहीं आएगी। 1-2 वोटर्स के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां पर जारी है। लेकिन जिन तमाम मुद्दों का यहां पर बार बार जिक्र हो रहा है कि आखिर जिस तरीके से एक दूसरे पर बार पलटवार तमाम जो सियासी पार्टियां वो करती हुई नजर आई, बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम खासतौर पर यहां पर बात करें, कई मसले यहां पर दिखे। लेकिन आखिर जनता क्या चाहती है, जो वोटर है वो किस तरीके से कनेक्ट करता है, क्या उन तमाम वो कौन से जो मुद्दे हैं जिसे लेकर आज जो है वो यहां पर वोट करेंगे, उनसे भी हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा यहां पर वक्त हुआ है। और अभी जैसे जैसे दिन यहां पर चढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स के पहुंचने का जो सिलसिला है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और ज्यादा संख्या में यहां पर वोटर्स पहुंचेंगे, उनसे भी हम लगातार यहां पर बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिन तमाम मसलों को लेकर, चाहे वो बजरंगबली का मसला हो या फिर जो है पीएफआई का मसला हो या फिर इसके अलावा जो अलग अलग मुद्दों को लेकर तकरार यहां पर देखने को मिली, क्या वो जनता के साथ सीधे तौर पर कनेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं।